क्या टॉपिक्स होता है आपके जब इकट्ठे बैठते हैं? मैं तो यहाँ पे मशहूरी रिपीट करूँगा अगर मेरे पास मोबाइल होता। जब आप सुबह आके मिलते हैं तो आते कहते हैं चेक कर तेरे भरा दा नवा मोबाइल। Talking about what we get on the TVs. Yes. Yeah. That's why I want. Okay, you have watched one particular channel, and what did you learn? Many drama. For example, mention a drama, mention the story, mention the circumstances, mention the consequences. Sir, actually, I am not watching dramas. Thank you very much. If you're not watching drama, then why are you? अब उसको ख़त्म करने के लिए मुझे वो सारी की सारी आदत को रब करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे मुशक्क़त करना पड़ेगी। और ये देखिए कि मैंने जब इसको खींचा तो मेरी ताकत लगी या नहीं? क्यों लगी? अपोजिट फोर्स कौन सी थी? वही आपके दोस्त, वही आपके फैमिली मेंबर्स वाले आपको नहीं करने देंगे, लेकिन आप उनके हाथ में से वो चीज़ खींच के लेकर आएंगे 0 पॉइंट तक। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। We welcome you here in another presentation of ELC with a huge audience, alhamdulillah, here. You have been discussing a different topic today, but my presentation is not actually related to the topic which is already discussed. I have something special for you today, especially for the youth, especially for the teenagers. I need your attention in the beginning, and I want you to listen to me carefully. I understand that you are fasting, and the restaurant that you are sitting in, you may not be actually looking at me, but at hen. समझ रहा हूँ कि आपने रोज़ा रखा हुआ है, मेरी तरफ ध्यान आपका कम जाएगा, कुकड़ी की तरफ ज़्यादा जाएगा। आपको कुकड़ी और कुकड़ दोनों मिलेंगे। But after this presentation, I must let you know the importance of today's presentation, that it is more important than your thirst. So kindly look at the screen attentively. I will be discussing the habits of teenagers. As the students we are having now or today, I know that they are teenagers, both boys and girls. Today we should be talking about their habits, good and bad habits. In the beginning, I will be highlighting their bad habits according to me, and after that I will be suggesting you to adopt good habits. And I understand, I believe the habits that you are going to see, especially good habits, will definitely help you in your practical life, in any kind of your life. So today is a day to learn new habits. Today is a day to remove your old habits and carve new habits, which will actually polish your personality, your mental faculties, and will definitely polish your life overall. I would want you to compare the habits that you possess with the habits we are going to see, and promise yourself that you will improve your habits. You will actually learn new habits today, inshallah. Okay? In the end, if you think that you're not actually agreeing with me, you may ask me questions, no problem. And then at the end we shall come to a point, a final point. Teenagers in our society nowadays are really very lazy, in my opinion. I used to be a teenager. The first bad habit, in my opinion, of teenagers is that they get up late in the morning.
And the reason is they go to bed late. Another reason is that the family they are living with or the parents they possess, they are following the same routine. रीज़न इसकी क्या है कि जिस फैमिली के साथ वो रह रहे हैं या जिन वालिदैन के साथ वो रह रहे हैं उनकी भी रूटीन यही होती है. That is why they are going to bed late and they are getting up late. In my opinion, the worst habit in my opinion, told you earlier, that they get up late in the morning. You happen to listen that they tell you that we get up early in the morning at about 11 o'clock. In their opinion, this is early. The second bad habit of teenagers in our society is that they do not have healthy breakfast. And if we talk about girls, they do not have breakfast. वो तो breakfast करती नहीं. And the reason is that you do not actually feel like having breakfast. Reason इसकी ये होती है कि आपका दिल ही नहीं कर रहा होता breakfast करने का, because your stomach is disturbed by eating a lot of junk food, and when you get up late, your stomach is also sleeping. You need to wake your stomach up this morning. Another bad habit is, anyway, they have their breakfast in the morning. अगर वो कर भी लेती हैं या आप लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या आता है? Their dress is very poorly dressed, or overly dressed. I'm not actually criticizing you. Let us look at our dresses today. Poorly dressed does not mean that you are not actually looking neat or decent. Poorly dressed means nowadays there is a poor fashion of wearing jeans or trousers. If you look at a teenager, for example, nowadays in our society, you will feel that he is actually trying to wear a pair of jeans. Or he was in a hurry to reach ELC or college or school, that he actually did not have time to fasten his belt. आपको ये लगेगा कि आजकल के टीनेजर्स, सर आपकी बात हो रही है, कि सुबह एक तो लेट उठे, फिर नाश्ता भी ठीक नहीं किया, और इतनी जल्दी थी कि उनको अपनी पैंट ऊपर करना भूल गए, या बहुत ज़्यादा जल्दी थी रिक्शे वाले को, वैन वाले को, या मोटर बाइक पे जो दोस्त लेने के लिए आता है, कि वो इधर तक ही रह गई, और पीछे वाला सारा शुमाली मगरबी जनूबी इलाका वाज़े तौर पर नज़र आता. और मुझे ये समझ नहीं आती कि उनके पेरेंट्स भी उनको कहते नहीं हैं कि आप शर्म करो, या वो घर से निकलने से पहले तो अपनी पैंट टाइट कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी फ़्लाइट बादलों के ऊपर जाती है, ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा, ये देखा होगा कि जो जहाज़ में सफ़र करते हैं पहले तो बेल्ट कहते हैं फास्टन योर सीट बेल्ट्स, लेकिन जब परवाज़ जब बादलों के ऊपर, तो उनकी बेल्ट्स आहिस्ता आहिस्ता लूज़ होना शुरू हो जाती हैं, और फिर जो सवारी है वो घूम फिरती है सीट के ऊपर. इसी तरह हमारे टीनेजर्स का भी हाल है कि उनको पता है कि हमारी पैंट या ट्राउज़र्स लूज़ हैं, वो उसको ऊपर करेंगे, फिर वो नीचे चली जाएंगी, फिर वो ऊपर करेंगे, फिर वो नीचे चली जाएंगी. और ये फ़ैशन अडॉप्ट किया है उन्होंने इंटरनेट से और केबल से, और ये समझते हैं कि ये डिसेंट फ़ैशन है. पोरली ड्रेस का मतलब मेरा यहाँ पर ये है. और अगर उन्होंने कोई टी शर्ट या शर्ट भी पहनी हुई है तो उसका भी कोई आलम नहीं है. बटन बंद करना तो हमें याद नहीं रहता है. अगर हमने नेक टाइज भी लगाई तो अक्सर आई टोल्ड यू द अदर इन अदर प्रेजेंटेशन टू फास्टन योर नेक टाइज, कि अपनी नेक टाइज को बंद कीजिए. नेक टाइज का मतलब यही होता है कि कॉलर का बटन बंद करके इसको टाइट करके नेक टाई लगाई जाए. मैंने मिसाल ये दी थी कि अगर आपकी नेक टाइज टाइट नहीं है तो ये बिल्कुल वो बकरे वाला, क्या उसको बोलते हैं, पट्टा है जो कि आपके गले में डाला हो, कि माँ पकड़ कहती है इधर आप, उतर इधर उतर, बाप भी कहेगा उतर इधर. तो मकसद जो नेक टाई का है वो इस बटन को, अगर इसकी हिस्ट्री को नेक टाई को देखें तो ये आपका जो गारमेंट है उसको बंद करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी. बाद में ये फ़ैशन बना है. जैसे ये हम जो बेल्ट लगाते हैं ये फ़ैशन के लिए नहीं है, अपने ट्राउज़र्स को टाइट करने के लिए,
फिर बाद में ही आहिस्ता आहिस्ता फैशन में आ गया। दे आर पोरली ड्रेस्ड, दे आर वेयरिंग इनसाइड आउट एंड दे आर हैविंग पुअर हेयर स्टाइल। अपना हेयर स्टाइल भी देखिए कि आया आप लगते हैं किसी मुसलमान घराने से आपका ताल्लुक़ है। आपका नहीं, मैं टीनेजर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी थोड़ी देर तक वो आएंगे। वेस्टर्न को फॉलो करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अच्छी आदत अगर फॉलो की जाएं ताकि हम डिसेंट नज़र आएं, हमें लगे कि हमारा दीन इस्लाम है जो खूबसूरती सिखाता है। सुबह उठ के जल्दी जल्दी वाली चीज़ें हमने पहनी होती हैं, वक्त हम लगाते नहीं कि अपने खुलिया हम ठीक कर लें। महिलाओं की अगर बात करें तो उनके ड्रेसेस जिस तरह के भी होंगे वो नामुनासिब, क्योंकि मर्द की सतर आपकी नाफ से शुरू होती है और औरतों की सतर पूरा जिस्म को ढांपना। और हमने अपने अजसाम को तो ढांपा होता है, लेकिन वो भी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती हैं। किसी दौर में लड़के लड़कियों के पीछे जाया करते थे, आजकल लड़कियां लड़कों के पीछे, उल्ट दौर आ गया। मुआशरे की तबाही का बायस कुरान पाक में दोनों के लिए अहकाम जारी की गए हुए हैं कि मर्दों को हुक्म है कि अपनी नज़रें नीचे रखें और औरतों को हर तरह से हुक्म है कि वो अपना जिस्म डांग कर रखें और फिर अपनी नज़रें नीचे रखें। हम टेम्प्ट करते हैं, हम इनवाइट करते हैं कि हमें छेड़ें। हमारे कपड़े, लिबास, हेयर स्टाइल और सबसे ख़तरनाक चीज़ आपका जूता, क्योंकि जब आप चलते हैं तो पूरी आवाज़ आती है, जैसे घोड़ा चलता है तो उसकी आवाज़ आती है। फिर सबसे नुकसानदेह चीज़ परफ्यूम, जो कि मना है औरत को बाहर जाने के लिए लगाने के लिए, और उसके लिए नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए। और ये दोनों की प्रोडक्शन घर से निकलते हैं। आपने अगर हॉर्स की रेस देखी हो तो वो एक बॉक्स में से निकलते हैं, ऐसे नहीं ना, ऐसे दरवाज़ा खुलता है तो दौड़ लगाते हैं। तो वो जिस बॉक्स के अंदर होते हैं वो आपका घर है। आपके वालिदैन भी आपको घोड़ों की तरह तैयार करके ये दुनिया की रेस में भेजा हुआ है उन्होंने, और आपके वालिदैन ने भी आपको तैयार करके इस दुनिया की रेस में आपको भेजा है। लेकिन उस रेस का अंदाज़ा लगाइए कि हमारे जब घोड़ों की रेस लगी है तो घोड़े एक दूसरे को देख रहे हैं, वो पाए ना दौड़ो, एक दूसरे को देख रहे हैं, इस तरह कर। हमारी जो दिशा है हम उसकी तरफ हम दौड़ नहीं रहे हैं, हम एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। वजह पोरली ड्रेस्ड, ओवरली ड्रेस्ड। मर्द हजरात का इतना ज़्यादा वो काम वाले कपड़े नहीं होते हैं, लेकिन महिलाओं के ज़्यादा होते हैं। चुन चुन के पार्टी ड्रेसेस, जिसको अंग्रेजी में कंस्पिक्वस बोलते हैं। फिर तो अपोजिट सेक्स की एक कशिश तो होनी है लाजमी, और एक चीज़ जो छुपी हुई हो जिसका आपको पता ही नहीं है इसके अंदर क्या है, उसकी कशिश क्या होगी। जैसे मैंने पॉकेट में कोई चीज़ रखी हुई, आपको पता ही नहीं है क्या है, तो उसकी कशिश क्या होनी। पॉकेट में से वो चीज़ निकली, मोबाइल फ़ोन एक्सपेंसिव निकला, तो फिर आपका दिल ललचाना शुरू हो गया। और जब वो चीज़ ही पैकिंग में है तो उसका क्या ललचाएगा। लेकिन हमारी महिलाओं की पैकिंग ही इतनी शानदार होती है कि वो पैकिंग को देख के ही महसूस होना शुरू हो जाते हैं कि पैकिंग इतनी खूबसूरत है। हम स्कूल जाते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, हमने अगर हिजाब भी लिया हुआ है तो हिजाब एक कवरिंग होती है, लेकिन हमारी कवरिंग में भी सारे जिस्म के हदो हाल नुमाया हो रहे होते। ये बुरी आदत है जिसकी वजह से हमारा मुआशरा बहुत दूर तक चला गया है। किसी ज़माने में, मैं अक्सर अपने ज़माने की बात करता हूँ कि 20, 25, 30 साल पहले लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे खेला करते थे, लेकिन वो एक जो प्यूबर्टी थी वो भी ग्रो नहीं की गई थी। लेकिन आजकल के दौर में 9 साल और 10 साल की उम्र में बंदा नहीं, बच्चा बालिग,
और आपको न्यूज़ में खबरें सुनने को क्या मिलती हैं, 11 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो गई। वजह, no segregation whatsoever in our society. There is no hijab whatsoever in our society. Everything is open because of your parents, because you are there in your houses and they are training you, they are bucking you up, they are ornamenting you, and they are sending you in society for the race. And then there is a race in our society, that we have forgotten our targets and we are looking at one another and we are not getting success. Today the topic was about how to get success. और ये भी एक hurdle है कि हम घर से तो निकलते हैं कॉलेज की तरफ, लेकिन रास्ते में ही कोई स्टेशन कोई और निकल आता है, वो स्टेशन में आधा पौना घंटा गुजार के फिर आगे निकलते हैं, फिर एक और स्टेशन आ जाता है कि हम इनफैक्ट घर से तो निकलते हैं मिलाप के लिए। Let me know one thing, why do we get dressed? हम तैयार क्यों होते हैं? Any answer? To look beautiful. Then why don't you get dressed at home when you go to sleep? आपका दिल नहीं करता है कि जब आप सोएं तो भी आप तैयार होके सोएं? कोई 3 पीस पहन के बंदा, कोई लॉन्ग शूज पहन के बंदा से लो जनाब मैं हंसा अम्मा जी मैंने सवेरे ही उठाई। हम तैयार होते हैं लोगों के लिए। कपड़े पहनने का मकसद सिर्फ डिसेंट नजर आना है, बेवकूफ़, जाहिल, निकम्मा, क्लेवर, पुअर लगने के लिए नहीं। और महिलाओं को कपड़े पहनने हैं अपने जिस्म को ढांपने के लिए, क्योंकि उनकी खूबसूरती सिर्फ उनके मर्द हजरात के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन होता यह है कि महिलाएं वो ढूंढ रही होती हैं, ओ मेरा बंदा है, नहीं आया नहीं, ओ मेरा बंदा है, ओ मेरा बंदा है। इसके बेहतर यह है कि अपने वालिदैन को बोलें कि ओ तुहाड़ा गुआचा दा बंदा ढूंढे। और आपसे भी दरखास्त है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो अम्मा को बोले, अम्मा जी मैंने मैट्रिक बाद च करा दियो, पहले निकाह को ले जाओ। क्योंकि जो चीज़ आपको तंग करती है अगर वो घर होगी तो आपकी मंजिल पे पहुंचना आसान हो जाए, क्योंकि वो ध्यान रखेगी ना। वो भी टीनेजर, आप भी टीनेजर, कितने पहुंचे हो? मेरे वास्ते बालू ले आई हो। चौथी बुरी बीमारी, फेक आइडेंटिटी। शनाख्त उनकी खोखली होती। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि किसी चीज़ का कवर तो बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन जब उसको खोला जाता है तो उसके अंदर से कुछ और निकलता है, सड़ी हुई चीज़ें निकलती हैं। तो हमारी अपीयरेंस खूबसूरत है, लेकिन अपीयरेंस के अंदर जो पर्सनैलिटी छुपी हुई है वो फेक है। क्योंकि आपके अच्छे कपड़े पहनना, इफ़ यू वेयरिंग गुड क्लोथ्स फॉर एग्जाम्पल, एंड व्हेन यू स्पीक यू शुड साउंड डिसेंट। जब आप बोलते हैं तो आपको डिसेंट लगना चाहिए। यू वेयरिंग गुड क्लोथ्स, व्हेन यू वॉक योर गेट शुड बी डिसेंट, आपकी चाल भी डिसेंट होनी चाहिए। व्हेन यू ईट इट शुड मैच with your personality or the clothes you are wearing. अभी जब 7 बजेंगे हम आपकी पर्सनालिटी को कंपेयर करेंगे कुकड़ी के साथ। आपको अपना भूला होगा कि मैं कौन हूँ, सिर्फ ये याद होगा मैं ते मेरी कुकड़ी। ठीक है, देखिएगा। और मैं चाहूँगा कि साहिल भाई आप इनकी रिकॉर्डिंग कीजिए, ताकि बाद में हम ये पूछेंगे कि आया ऐसी बात है कि नहीं है। हमने अपनी पर्सनैलिटी के साथ अपनी ईटिंग हैबिट्स को भी डेवलप करना, इस चीज़ को एजुकेशन का नाम कहा जाता है। Another bad habit in my opinion is irregularity. They are not regular. स्कूल और कॉलेज में जाना उनके लिए रेगुलर नहीं है। And another thing is they are least interested in studies. स्टडीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। उनको कॉलेज और स्कूल जाना उनकी
एक किस्म की मजबूरी है, क्योंकि वालिदैन ने फोर्स किया होता है, कार मुंडा वेला होता है, कम से कम स्कूल और कॉलेज जाएगा तो उसका वक्त तो गुजरे। फिर हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं अपने सेलेक्टेड नहीं होते हैं, बारोड सब्जेक्ट्स होते हैं, किसी से हमने पूछ के ये सारी चीज़ें सेलेक्ट की होती हैं। हमें कॉलेज में पढ़ना अच्छा नहीं लगता, वी डोंट एक्चुअली एंजॉय स्टडिंग इन कॉलेज और स्कूल। Another bad habit in my opinion is that they are not good quality study conscious. वो study conscious, quality study conscious नहीं होते हैं। They are looking for shortcuts. ये चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसको हम पेपर में दिखाएं या कॉपी करके आएं तो हम सिर्फ पास हो जाएं। उन्हें क्वालिटी एजुकेशन का पता नहीं होता है, उन्हें क्वालिटी जो स्टफ़ पहनने के लिए है उसका पता होता है। डोर टू डोर जाते हैं, शॉप टू शॉप जाते हैं अच्छी शॉपिंग करने के लिए, अच्छे ब्रांड्स की उनको पहचान है, अच्छे मोबाइल फ़ोन्स के मॉडल की उनको पहचान है, गाड़ियों के मॉडल्स की उनको पहचान है, टेलीविज़न प्रोग्राम्स का उनकी पहचान है, लेकिन स्टडी क्वालिटी उसकी पहचान उनको नहीं है। जो चीज़ उनको सक्सेस देगी, दे आर नॉट एक्चुअली अवेयर ऑफ इट। Another bad habit is, and when they get together, जब वो इकट्ठे होते हैं उनका टॉपिक क्या होता है? Poor topics. क्या टॉपिक्स होता है आपका जब इकट्ठे बैठते हैं? मैं तो यहाँ पे मशहूरी रिपीट करूँगा अगर मेरे पास मोबाइल होता। जब आप सुबह आके मिलते हैं तो आते कहते हैं चेक कर तेरे भरा दा नवा मोबाइल। टाइम बता दो। और वो क्या कहता है? इसमें सोना है, इसमें चांदी है, इसमें अम्मी अबू का प्यार है। नहीं, तो मेरा चेक कर। ठीक है, फिर वो चेकिंग शुरू हो जाती है। फिर अगली बात क्या होती है? चेक कर रहा है, मैसेज आया है, इसमें ये फंक्शन है, इसमें ये फंक्शंस है। आपका ये डिस्कशन टॉपिक होता है। फिर घूमने फिरने के लिए कहाँ पे जाना है, वो डिस्कशन टॉपिक होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका होता है वो मोबाइल के अंदर होता है। उसी को डिस्कस करते करते आपकी सारी उम्र गुजर जाती है। तो मैं मेंशन करूँगा तो शर्मिंदगी महसूस होगी कि वो भी टॉपिक आपका एक दूसरे की सिलेक्शन का ही होता है। उसने रात को मुझे ये मैसेज भेजा, मैंने उसको ये मैसेज भेजा, अब ये हो गया तो वो हो गया। पढ़ाई से दूर निकाह वाली गल्लां। इसीलिए मैं आपसे शुरू में रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इतनी जल्दी है तो अपने वालिदैन को बोलिए कि हमारी हाँ करवा दें, हमें पहले से कबूल है, कबूल है, कबूल है। फ्यूटाइल डिस्कशन टॉपिक्स। यार साड़ी बत्ती राती 4 घंटे नहीं आई। अच्छा साड़ी भी इंज नहीं आई, चलो ठीक है जनाब। पॉलिटिक्स में ये हो गया, वो हो गया, वेस्टेज ऑफ टाइम। आप कैसा डिस्कस करते हैं? और मैल अच्छा लिया सी, मैं 5 रुपये का लेना सी, उन्हें मैंने 10 रुपये का दे देते हैं। मेरी 3 पहियां वाली साइकिल जी गवाच गई। आप क्या डिस्कस करते हैं? लीस्ट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज। किसी ज़माने में एक डिस्कशन हुआ करती थी कि हमने हर गली मोहल्ले की अपनी अपनी टीम हुआ करती थी। वो क्रिकेट की हो सकती है, वो फुटबॉल की हो सकती है, वो हॉकी की हो सकती है। आपको लगता है कि आजकल किसी मोहल्ले की कोई टीम है जिनकी प्लानिंग होती है इक्का दुक्का होगी? मैं ये नहीं कहता हूँ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लेकिन किसी ज़माने में। जी सर कुछ कहना चाहते हैं? नहीं है? है किताबों में, कापियों में? अगर है भी तो संडे को मैच होता है, और जब मैच होता है तो 6 पहुंचे होते हैं, बाकी उठान गए होंगे ने उठता नहीं। मुझे याद पड़ता है कि हम 11 खिलाड़ी हुआ करते तो आखिर में हमें 7 साइड खेलना पड़ती थी क्योंकि बाकी सोते होंगे। लीस्ट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज। हाँ, एक्सरसाइज भी अगर उन्होंने करनी है तो इवनिंग में करनी है। जैसे भोला पहलवान बैठा है यहाँ पे, अगर एक्सरसाइज करनी भी है उन्होंने तो मॉर्निंग में करनी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नहीं बल्कि ज़्यादा सा सोचिए। क्या सोचिए कि एक्सरसाइज हो रही है इन अ बिग हॉल, एयर कंडीशन हॉल। अगर दौड़ना भी है तो वो रनिंग मशीन के ऊपर दौड़ लग रही है। अगर वार्म अप भी होना है तो अंदर कमरे में, घुटन वाले कमरे में,
They're building their body. Yeah, come on, yeah, come on. आपकी इनहेलिंग, आपकी जो किडनीज हैं उनकी एक्सरसाइज हो रही है क्या? उनके अंदर ताज़ा हवा जा रही है? अगर एक्सरसाइज आप कर भी रहे हैं तो वो भी अपनी जिसामत बेहतर करने के लिए, ताकि हम किसी दूसरे को दिखा सकें कि हमारे डंडोले बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से नहीं कि हम सेहतमंद रहना चाहते। ईटिंग आउट, रोज़ कम से कम एक दफ़ा टीनेजर्स ने बाहर से खाना खाना होता। महिलाओं की तो मौज लगी हुई है, कॉलेज गए, पापड़ी चाट, गोलगप्पे, समोसे, अम्मी भूख नहीं है मैंने, दोपहर का खाना नहीं खाती, नाश्ता करके नहीं जाएंगी कॉलेज और स्कूल में, पुठियाँ चीज़ें कैंटीन से खाएंगे। और आप लोगों की तो मौज है, कॉलेज के बाहर चले गए, कॉलेज के अंदर भी ज़्यादातर आपकी डिस्कशंस या आपका इकट्ठ कहाँ पे होता है? कैंटीन में। सारे दिन का हाल एक्सचेंज करना है आपने, और वहीं पे आपने जंक फूड खाना। तो फिर घर आके ना आपको दोपहर का खाना है, फिर दिल किया तो रात को बाहर निकल जाएंगे, फिर भी बाहर खाएंगे। And the worst habit in my opinion is they are indulged in smoking etc. सिगरेट 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल की एज में ही शुरू हो गया। इसका ज़िम्मेदार आपके वालिदैन का चेक आप पर नहीं है। अड्डे खुल गए हुए हैं यहाँ पर। और सबसे बुरी चीज़ जो कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी इजाज़त मिल गई है, एक नई चीज़, उसको हम स्मोकिंग नहीं कहते हैं, जिसको आप शीशा का नाम जिसको आपने दिया हुआ है कि चलो है, इसका तो नशा नहीं होता है, इसका टेस्ट मिलता है। गाजर दा हलवा पाया होता ना विच। ये चीज़ भी बुरी है, लेकिन इसको मना करने वाला कोई नहीं है, ना आपके वालिदैन, ना कोई स्कूल में, ना कोई कॉलेज में। तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्मोकिंग एक बुरी हद तक पहुंच जाती है, और फिर आप दूसरी एडिक्शन में अपने आप को एडिक्टेड करते हैं। दे आर हैंगिंग अबाउट ऑन रोड्स। फिर थोड़ी फुर्सत मिली तो मोटर बाइक पे अपने फ्रेंड को लिया, तो रोड्स पे सैर हो रही है, ज़रा कैंट ही चक्कर ला रही है। स्ट्रीट्स के कॉर्नर पे खड़ा होना, स्ट्रीट्स पे वहाँ पे खड़ा होना, स्ट्रीट्स के अंदर आपके ग्रुप्स बने हुए और बातें हो रही। औरतें तो ऐसा नहीं कर सकती, लड़कियां तो ऐसा नहीं कर सकती, उन्होंने तो घर आ जाना है। लेकिन घर आने के बाद उनके मोबाइल फ़ोन ही उनको नहीं छोड़ते हैं। जो चीज़ कॉलेज में हुई होती है उन्होंने दोबारा से उसको पूछना है। एक चीज़, बिकॉज दे आर irregular, they are not going to college frequently, and they are missing their classes, and then they are calling their friends, what happened in school or college today? Tell me more in detail. Hours are gone. See the investment of yours. आगे चल के हम ये देखते हैं, ये आपकी इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी होती तो इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स ना करने आना पड़ता यहाँ पर। आपको अभी ये ना सोचना पड़ता कि सक्सेस क्या होती। हमारी इन्वेस्टमेंट ही ठीक नहीं है। मिसिंग डेली प्रेयर्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे अहम चीज़ क्या है? प्रेयर्स ज़िंदगी में नहीं है। सिर्फ जुमा पढ़ना है, और जुमा भी इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें खदशा होता है कि 3 या 4 जुमे नहीं पढ़ेंगे तो हम मुसलमान नहीं रहेंगे। हम जाके रिन्यू करवाते हैं अपने, आप कारी साहब ज़रा दास्ती मैं जुमा पढ़ ले, ठीक, एक हफ्ते बाद मैं मज़ीद 1 हफ़्ता बग़ैर नमाज़ों के रह सकता हूँ, फिर जाके मोहर लगाते हैं, क्योंकि हमारे वालिदैन की तरबियत ही इसी तरह से होती है। विजिटिंग फ्रेंड्स फॉर नथिंग, कॉलेज के आने के बाद शाम हो गई है, रात हो गई है, और फिर दोस्तों की तरफ आना जाना लगा हो। और पेरेंट्स को भी पता है कि दोस्त है, कोई बात नहीं, स्कूल का दोस्त है, नो प्रॉब्लम, कॉलेज का दोस्त है, नो प्रॉब्लम। आप तो जा नहीं सकती हैं, लेकिन आप फ़ोन तो कर सकती हैं। लेकिन महीने में 1 या 2 दफ़ा अपने फ्रेंड्स की तरफ जाना है, उन्होंने आपकी तरफ आना है, क्योंकि आपकी बर्थडेज़ ही ख़त्म नहीं होती, शादियाँ ख़त्म नहीं होती, मामू के मामू की शादी तक भी हमने पहुँचना होता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन एंड इंटरनेट एंड टेलीविज़न। आज मैं आपसे ये पूछूंगा कि जिस टाइम की इन्वेस्टमेंट आप घर जाके करते हैं इंटरनेट के ऊपर,
टेलीविज़न के ऊपर, मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक बंदा भी खड़ा होकर मुझे बताए कि सर मैंने पूरा साल इन्वेस्टमेंट की, मैं पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं कह रहा हूँ, टाइम, एनर्जी एंड योर माइंड आपने स्पेंड किया टेलीविज़न प्रोग्राम्स देखते हुए, इंटरनेट सर्फिंग करते हुए या मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए, 1 साल के इस्तेमाल के बाद कोई लड़का या लड़की मुझे खड़ा होकर बता दे कि सर हमें ये चीज़ एक अरसे में सीखी है, 1 साल के अरसे में सीखी। एनीवन, चैलेंज। वही मैसेज मुझे बता दीजिए, कोई चैनल बता दीजिए, कोई प्रोग्राम बता दीजिए कि वो ये मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं। मैंने वो मैसेज 1 साल देखा और आज सर मैं आपके सामने ये। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि जस्ट सपोज दैट वी वाचिंग ड्रामास एंड ड्रामा में काफ़ी स्टोरी होती हैं, ये डिपेंड करता है हम पे कि हम स्टोरी को किस तरह ले रहे हैं। What are you getting by watching dramas? Let's have opinion from the audience. We are watching dramas, movies, etc. What are we getting from it? And when we A message. We are getting message. Okay, no problem. I agree with you. Okay, at the moment, we have about 13 episodes of a drama. What message are you getting after 13 hours? It depend on the situation or dramas. Any drama. अंधेरा उजाला देखने के बाद क्या आपको मैसेज मिला? Every moment have message for us. Discuss a couple. कोई एक दो तो डिस्कस कीजिए। I am just posing that. I am just posing. Like you in your presentation, you're talking about our teenagers. They are involving in different types of etc. habits, like love or many other things. And when you watch this thing on TV, This is another thing. We are actually at this the is end- dear. at the end This is an educational platform. You're getting information. I'm talking about the drama channels, movie channels, etc. you are talking about what we get on the TVs. Yes. Yeah. That's why I want. Okay. You have watched one particular channel, and what did you learn? I explain. When we watch dramas, in the story we get knowledge from the dramas. This way is not suitable for us because many drama. For example, mention a drama, mention the story, mention the circumstances, mention the consequences. Sir, actually I am not watching dramas. Thank you very much. If you're not watching drama, then why are you discussing dramas at the moment? I have information about dramas. No, that's another thing. By watching television after 1 year, what did you get? Yeah. Sir, I also saw you on TV, and I think you are a very big person because you also join every person come in. आपने बहुत से लोगों को जाना। We're talking about drama channels, movie channels, cartoon channels, song channels, etc. बस सर ये also एक चैनल ही है ना, ELC का चैनल। सर आप देखिए, मैंने आपको देख के ना ELC में आने का मेरा सबसे बड़ा एम सर आप हैं। मैंने आपको सुना ELC के चैनल पे और मैंने आपको यानी कि फॉलो किया। जो मैं ये कह रहा हूँ, में भी ये चीज है ना। दूसरे चैनल जैसे बहुत ज़्यादा दूसरे ड्रामा चैनल्स, मूवी चैनल्स ये देखती हैं ना, सारी लड़कियां देखती हैं ना। ये क्यों देखती हैं, क्या सीखती हैं उससे? कुछ भी नहीं सीखते। सर कुछ खास तो होता नहीं ड्रामास में, पता नहीं इन लड़कियों को पूछें क्या देखती हैं ये ड्रामास। No sir, I am not watching dramas because I am not into dramas. आप लड़की ही हैं ना, तो जवाब Sir, but I am not watching dramas and movies. I also watch ELC. Anybody else? Did you learn anything from television? Sir, every coin has two sides. अगर हम एक Every? coin, हर एक सिक्के की 2 हिस्से होते बिल्कुल हैं, 2 ठीक। साइड्स होती हैं। बिल्कुल। अगर कोई मूवी है, हम ये नहीं कि उसकी एंटरटेनमेंट के लिए है, बट हम जैसे कोई कोट करते हैं 3 इडियट्स मूवी या शोले, जो भी मूवी करती है, थोड़ा सा हमें ये देती है, मैसेज भी देती है, लेकिन एंटरटेन भी करती है। हम ये नहीं कह सकते कि वो हमें मैसेज कोई नहीं दे रही, हम मैसेज से नहीं ले रहे। Okay, I understand there is something in the drama tragedy which is giving you something. Okay, after 3 hours, you are getting 1 penny. You are investing 3 hours, your energy, your mind, and at the end, what are you getting? You're getting 1 moral line. Why don't you tell or ask anyone, you have watched this particular movie, tell me what it says? अगर मैं After 3 hours, what are you getting? Nothing.
खोदा पहाड़ निकला चूहा, इतनी एफर्ट करके, इतना ज़्यादा वक्त लगा के की कमाया की वटिया कुछ भी नहीं। और तू 12 साल को इतला इन्हें बट की लेके आया। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो हम हासिल कर रहे हैं। मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि ये कुछ की जगह में आज आपको कुछ और जनाब पैकेज लेके आओ, है जी। अब वो देखें फिर मुझे बताइएगा जी भाईजान। I also got Iqbal's poetry from internet and also the meaning of poetry. How long did it take? कितनी देर लगी? ज़्यादा देर लगी। ज़्यादा देर नहीं लगी, 5-10 मिनट में अल्लामा इकबाल सामने आ गए जनाब। Yes, sir. And information My about question is, we are spending a lot of time on internet, working on Facebook, YouTube, etc. What are we getting? This is my main question. We're wasting our time on the internet. We are not making it fruitful for ours, for us and for others. So Thank every you. technology have their But merits. we do have so many things available on television. We are not saying that television is not a good thing. It's extremely wonderful thing. Yes, sir. Internet is extremely wonderful thing, par excellence. Yes, sir. Same as mobile phone. But we are not making good use of it. Sir, it depends on us. We are coming to it. It depends on us. ठीक हो गया, thank you. बैठो बैठो। We're coming home late. देर से घर आते हैं, मैं थोड़ा तेज चलूँगा because we have less time. We're coming home late. They're sleeping late at night. उनकी हैबिट्स, मैं उनकी जो बुरी आदत हैं वो आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ कि देर से घर आते हैं और देर से सोते हैं। क्या टॉपिक्स होता है आपके जब इकट्ठे बैठते हैं? मैं तो यहाँ पे मशहूरी रिपीट करूँगा अगर मेरे पास मोबाइल होता। जब आप सुबह आके मिलते हैं तो आते कहते हैं चेक कर तेरे भरा दा नवा मोबाइल। Talking about what we get on the TVs. Yes. Yeah, that's why I want. Okay, you have watched one particular channel and what did you learn? Many drama. For example, mention a drama, mention the story, mention the circumstances, mention the consequences. Sir, actually I am not watching dramas. Thank you very much. If you're not watching dramas, then why are you? अब उसको ख़त्म करने के लिए मुझे वो सारी की सारी आदत को रब करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे मुशक्क़त करना पड़ेगी। और ये देखिए कि मैंने जब इसको खींचा तो मेरी ताकत लगी या नहीं? क्यों लगी? अपोजिट फोर्स कौन सी थी? वही आपके दोस्त, वही आपके फैमिली मेम्बर्स वाले आपको नहीं करने देंगे, लेकिन आप उनके हाथ में से वो चीज़ खींच के लेकर आएंगे 0 पॉइंट तक। We are going to rub them off. हम अब उनको ख़त्म करने जा रहे हैं। Look at me everyone. Now here is the very first day of yours. इस लेवल पर आकर ये बड़ी पता की बात है। The first day of your life, you're born. And then you're growing naturally. आप naturally grow करते हैं। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग आपको नहीं सिखाते, स्कूल वाले कॉलेज वाले आपको नहीं सिखाते, लेकिन आप खुद बहुत सीख रहे होते हैं। Look at me everyone, here you are and you do not possess any sort of habit. With the influence of society and your family members, you are learning or developing new habits. Look at the pen is being pushed by something. ये जो चीज़ है इसको कौन सी चीज़ खींच रही है? ज़मीन में से जो ताकत निकलती है उसको क्या बोलते हैं? अर्थ ग्रेविटी। ये ग्रेविटी हमारी सोसाइटी में मौजूद है जो कि आपके पेरेंट्स की तरफ से आती है, जो कि आपके रिलेटिव्स की तरफ से आती है, जो आपके ब्रदर्स सिस्टर्स की तरफ से आती है और आप नई हैबिट सीखते हैं। नई हैबिट्स आप सीखेंगे अर्थ ग्रेविटी की वजह से। आप ये देखिए कि मुझे कोई ताकत लगाना पड़ी इस पेन को नीचे गिराने के लिए? नहीं लगाना पड़ी। इस तरह आप हैबिट्स सीखते हैं। अब हमारी ये जो 17 बुरी आदत हैं, हमने इनको ख़त्म कैसे करना है? जब नई आदत आपने सीखी या आपने अपने पोजेस की, ताकत लगी नहीं, लेकिन उनको ख़त्म करने के लिए ताकत लगेगी। अब उसको ख़त्म करने के लिए मुझे वो सारी की सारी आदत को रब करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे मुशक्क़त करना पड़ेगी। आई विल हैव टू बेंड,
मुझे पहले बैंड होना पड़ा अपने जिस्म में ताकत लगा के, और फिर उसको खींचना पड़ा। और ये देखिए कि मैंने जब इसको खींचा तो मेरी ताकत लगी या नहीं? क्यों लगी? ऑपोजिट फोर्स कौन सी थी? वही आपके दोस्त, वही आपके फैमिली मेंबर्स वाले आपको नहीं करने देंगे, लेकिन आप उनके हाथ में से वो चीज़ खींच के लेकर आएंगे 0 पॉइंट तक। Now many people in the world, many teenagers or other people in the world, they do not actually delete their previous habits they possess and they start developing new habits. वो उसी चीज़ के ऊपर नई हैबिट्स डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड होता है। सबसे पहले हमने उन हैबिट्स को डिलीट करना है और नई हैबिट्स लेकर आनी है। लुक एट द बोर्ड। Samuel says, so a thought, अब हम चीज़ें इन्वेस्ट करने लगे। सो का मतलब क्या होता है? बोना, जैसे हम बीज बोते हैं। वो कहता है एक थॉट को सो कीजिए और जब वो पक जाएगा क्या मिलेगा? एंड यू रीप एन एक्ट। एक सोच आती है, फिर उससे एक एक्शन बनता है। सो एन एक्ट, उसी एक्ट को सो कीजिए एंड यू रीप अ हैबिट। मेरी हरकत से मेरी आदत बनती, मेरी सोच से मेरा अमल बनता है और मेरे अमल से आदत। आदत को सो करते हैं, सो हैबिट एंड यू रीप अ कैरेक्टर। जब आप आदत को सो करते हैं, आदत मिला के आपका कैरेक्टर बनता है। एंड व्हेन यू सो अ कैरेक्टर यू रीप अ डेस्टिनी। और जब आप कैरेक्टर को सो करते हैं तो आपको डेस्टिनी मिलती है। So in nutshell, it starts from thought and it produces our destiny. यहाँ पे अपनी किस्मत बनाने वाला बंदा खुद है, क्योंकि हमने सोच को सो किया और in the end हमने अपनी किस्मत को प्रोड्यूस किया। तो कामयाब लोग वो हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। जो अल्लाह ताला ने सलाहियत आपको दी हुई है, ये आपको टॉपिक इसीलिए दिया था कि आपको ये जांचें कि सक्सेस कैसे मिलती है। सक्सेस मिलती है अच्छी सोच को सो करने से, अच्छे एक्ट से, अच्छी हैबिट से, अच्छे कैरेक्टर से, और फिर आपकी डेस्टिनी की प्रोडक्शन होती है। आपकी सोच ही अच्छी नहीं है तो उसका रिजल्ट अच्छा कैसे होगा? Let us move towards good habits. Good habits of teenagers. Anyone, if you remember? They offer prayers? How many of you, mashallah, offer prayers? Mashallah. Why do you offer prayer? सर मैंने पूछना था कि इस्लाम में तो इजाज़त नहीं है मूवी बनवाने की या कैमरे में आने की, लेकिन आप क्यों मूवी की? अच्छा, इसका जवाब मैं ये देता चलो, इस्लाम में सिर्फ वो तस्वीर कशी हराम है, ये है वीडियोग्राफी। मेरी बात गौर से सुनिए, दिस इज़ वीडियोग्राफी। ये कार्विंग नहीं हो रही है। हम टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव कर चुकी है कि हम आपकी हरकत को सेव कर रहे हैं, हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से हाथ से तस्वीरें बना करती थी। मेरी बात सुन लीजिए पूरी। ये क्या है? वीडियोग्राफी। तस्वीर कशी और वीडियोग्राफी में क्या फ़र्क है? वो आप हाथ से बना रहे होते हैं, देयर इज़ अ डिफरेंस। इसलिए वीडियोग्राफी आलिमों का कहना है कि ये हराम नहीं है। अब हम चलते हैं फोटोग्राफी की तरफ। फोटोग्राफी भी बहुत से उलमा कराम उसको हराम इसलिए नहीं समझते हैं कि वो कार्विंग नहीं है, वो एक अक्स है। ठीक है, वो है फोटोग्राफी, ये है वीडियोग्राफी। वीडियोग्राफी इज बेसिकली अ कॉम्पिलेशन ऑफ डिफरेंट इमेजेस। वो आपका एक इमेज है, उसको 27 टाइम्स शायद दिखाते हैं या 54 टाइम्स। साहिल भाई कितनी दफ़ा से दिखाते हैं? 25 आपके जो इमेजेस हैं पर सेकंड में दिखाए जाते हैं, फिर आपको हाथ हिलता हुआ नज़र आता है। ये वीडियोग्राफी है। इससे पहले क्या थी? फोटोग्राफी। फोटोग्राफ जिसको बोलते हैं, उसके 27 इमेज एक सेकंड में ऐसे ऐसे करके आपके सामने नज़र आ रहे हैं, वो मूव कर रहे होते हैं। Whereas in Islam, तस्वीर कशी, carving photographs, making photographs is haram. Now your question. I'm not sure about whether it's a Quranic verse or a hadith. छोटे भाई, मुझे ये कंफर्म नहीं है कि कुरानिक आया है या हदीस है जिसमें फरमाया गया है
कि प्रीचिंग करो विद द बेस्ट मीडियम अवेलेबल। अब बेस्ट मीडियम आजकल क्या है? Videography. They are exchanging videos. And if you do not have this particular thing, do you think that you will ever be able in your life to see the image of holy Kaaba? अगर ये ना होता, कभी सोचा आपने कि आप कभी सारी उम्र भी अगर कोशिश करते रहते तो होली काबा का इमेज नहीं देख सकते? You have never been there. आप तो कभी गए नहीं। I have never been there. मैं भी कभी नहीं गया हूँ। मस्जिद नबवी की हमें आ रही है, इमेज नज़र आ रहा है, खाना काबा का इमेज नज़र आ रहा है, वहाँ पे जो मुख्तलिफ दूसरे मुक़द्दस मुकामात हैं उनके इमेजेस हमें नज़र आ रहे हैं और लाइव हम देख रहे हैं विद द इन्वेंशन ऑफ वीडियोग्राफी। ओके, स्कॉलर कहते हैं कि टीवी नहीं ठीक, टीवी हराम है इस्लाम, ये कैसे कहते हैं? देखिए, बहुत स्कॉलर्स का जितना नॉलेज होगा ना उसके मुताबिक फतवा देंगे। टीवी पड़ा हुआ है, टीवी हराम कैसे हो सकता है? टीवी के अंदर जो चीज़ें चल रही है ना वो हराम है। बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो हराम हैं, लेकिन वहाँ पे आपको अल्लाह और अल्लाह के नबी के पैगामात मिलेंगे तो वो हराम कैसे हो सकता है? हाँ, कुछ ऐसे कार्टून टेलीविज़न पे हैं जो 3:30 बजे आते हैं और 8 बजे जाते हैं, वो चीज़ें मैं कहूँगा कि वो आपको नहीं देखनी चाहिए। जो सहरी के वक्त 3 बजे आ जाते हैं और 5 बजे जाते हैं, वो मैं कहूँगा कि उस तरफ ना जाएं। कुछ डैश टेलीविज़न ऐसा है जो कि आपके अकीदे ख़राब कर रहा है, जो घर बैठ के आपको उम्रे करवा रहा है, हज करवा रहा है, वो कहूँगा कि वो नाजायज़। सर, हम टेलीविज़न में या फिर सारे कंप्यूटर्स में सर प्लेस देखते हैं खाना काबा की, तो सर वो तो ठीक है सर, वो हमें देखनी चाहिए। लेकिन जब हम किसी की सच स्नैप्स देखते हैं, लेकिन ये तो हराम है ना इस्लाम में। देखिए, मैं तो अग्री करता हूँ इस चीज़ से, जो चीज़ हराम है वो हराम है। अब ये ऐसा नहीं है कि टेलीविज़न बिल्कुल हलाल है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। जैसे ग्लास है, अक्सर उलमा इसकी एग्जांपल दिया करते हैं। ग्लास को आप पानी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और लेकिन सर वीडियो में भी तो सर वही स्नैप्स होती हैं हमारी, सर जब वीडियो दिखाई जाती है वो वीडियो में आपकी स्नैप्स होती हैं, इसीलिए हम आपको कहते हैं कि पर्दा करके आएँ। लेकिन पूरा सलमे सितारे लगा के इधर सामने आएंगे तो फिर हम आपको कितना ज़्यादा मना करें। हम सर, हमारी सर, अगर बात के लिए नहीं सर, मेंस के लिए भी सर, मेल के लिए भी सर, मेल के लिए भी, लेकिन उसके लिए कहा गया है कि आप उनकी आवाज़ सुन सकते हैं। अगर इतना सा इमेज है, फॉर एग्जांपल यहाँ से उसका सर शुरू हो रहा है, आपको ज़रूरत नहीं है उसके इमेज को देखने की। आप इधर देखिए, साइड पे देखिए, जो इधर उधर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहाँ पे देख के और उनको जो कह रहे होते हैं उनको सुनिए। ठीक है, टेलीविज़न की बात तो बात, वेट अ मिनट, तालियां भी ना बजाइए, वेट अ मिनट। टेलीविज़न तो बात की बात है, अभी आप बाहर निकलेंगे, सबसे बड़ा जो रॉ मटेरियल आपको मिलता है हमारी सोसाइटी में वो तो ये दुनिया है। यस सर, वो जब आप जाएंगे, मेरी बात आप पूरी हो लेने दीजिए, जब आप बाहर जाएंगे तो आप कहेंगे बाजार भी हराम है, वहाँ पे भी बंदे होते हैं। ग्राउंड में चले जाएं, वहाँ पे भी वो भी हराम है, वहाँ पे भी बंदे होते हैं। जब बाजार में कोई बंदा आ जाता है तो हमें हुक्म क्या है? लो योर गेज, अपनी नजरें नीचे करें। लेकिन जब आप उनसे गुफ्तगू करते हैं तो आपको उनकी आवाज़ जारी होती है। इसी तरह जब आपको कोई नामहरम टेलीविज़न पे नज़र आए तो आपको लाजिम है कि आप अपनी नज़रें नीचे करें। लेकिन सर टीवी तो हराम हुआ ना, यानी कि सर उधर हम देखते हैं सर, मेल्स हों या फीमेल्स हों सर, जो भी हों, इस्लाम में टीवी अलो नहीं है ना। कैसे कह सकती हैं आप? टेलीविज़न तो उस दौर में था ही नहीं। सर देखें, जैसे कि सर अब हम शराब को ले लेते हैं, शराब का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था स्टार्टिंग, यानी कि स्टार्टिंग में अल्लाह ताला ने यानी कि मना किया था लोगों को कि आप शराब ना पिए, यानी कि इसके यानी कि कुछ टाइम मुकर्रर शुरू में हलाल थी, बाद में ये नहीं सर, मतलब ये नहीं है मेरा, यानी कि सर शराब से हम यानी कि जब यानी कि अरब के लोग शराब पीते थे सर, उससे कुछ फायदे लेते थे वो। जी बिल्कुल सही है। यानी कि फिजिकल यानी कुछ उनकी जो टेंशन थी वो फ्री हो जाते थे। लेकिन सर इसका जो है यानी कि स्पिरिचुअल तौर पर बहुत नुकसान है। तो सर ऐसे ही सिस्टर, शराब तो हर तरह से हराम है। हाँ जी सर, हर तरह से। हराम है उसकी बात कीजिए। सर टीवी भी तो ऐसे है ना, वो हमें थोड़ी देर के लिए फायदा देगा सर, लेकिन स्पिरिचुअल हमें फायदा नहीं देगा। मुझे 100% फायदा दे रहा है स्पिरिचुअल, क्योंकि मैं प्रोग्राम्स ही वो वाले देखता हूँ जो मुझे फ़ायदा दे रहे होते हैं। मैं उस तरह के प्रोग्राम नहीं देखता जो 100% मुझे नुकसान दे रहे हैं। बाजार चले जाएं, देखिए वो आप लोगों को तो समझाने में आया हूँ जी, ऐसा तरह से बहुत ही आया नहीं सर ठीक है, यही चीज़ें तो आपको बताने आए हैं। बाजार में हर तरह की दुकानें,
फिर कहें बाजार हराम है नो सर। तो फिर अब्बू जी कितों ला के आन केले? वहाँ पे भी मर्द होते हैं। जी सर। खाना काबा भी अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे भी मर्द और औरतें इकट्ठी हैं। वहाँ क्या करते हैं आप? ठीक है सर। उम्रा करेंगे डर ये हो गया, तब तो आपको लगता है आपकी जो डायरेक्शन होती है वो खाना काबा की तरफ होती है। आप हर तरह की चीज़ें भूल चुके होते हैं। सर तो मैं यहाँ पे भी हमने अपना अकीदा पक्का करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है। उस टाइम तो सर चाइना जो है वो भी नहीं था, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इल्म हासिल करो, हाँ तुम्हें चाइना जाना पड़े, चीन जाना पड़े, पर तब तो चीन भी नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि उनको हर चीज़ चीन था या नहीं मुझे इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है, लेकिन जहाँ तक इस हदीस का ताल्लुक है, कुछ उलमा कराम का कहना है कि ये कमज़ोर हदीस है। लेकिन एक हदीस में मिलती जुलती बता दूं कि जो दीने हक की राह में सफ़र के लिए निकला, उसको हासिल करने के लिए निकला, उसको भी मुजाहिद कहा गया। हाँ, लेकिन चीन पाकिस्तान से बाद में उसका वजूद में आया था। लेकिन ये भी एक हदीस है जो हम बहुत से लोगों ने सुनी है, तो लेकिन ये तब चीन भी नहीं था। आप टीवी की बात कीजिए ना, कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि आपने कहा कि उस टाइम टीवी नहीं था, इसलिए कि हमें हदीस उसकी नहीं मिलती है, इसलिए ये कहा है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं था, फोटोग्राफी नहीं थी, वीडियोग्राफी नहीं थी, इसलिए हमें कोई हदीस नहीं मिलती है। अब हमने इजमा क्यास करके ये चीज़ों को देखना है कि ये चीज़ें आया हमारे दीन के साथ कोई कॉन्ट्रोडिक्शन तो नहीं है। ऑलराइट, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। सबसे पहले अल्लाह ताला पे ईमान, सुबह सुबह उठना है हमने। वी नीड टू डेवलप न्यू हैबिट्स अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर फजर प्रेयर। वी नीड टू मूव ऑन वेरी फास्ट, लेस टाइम वी हैव। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी जल्दी उठना है और जल्दी बिस्तर पर जाना है। अच्छी चीज़ें अब नोट करने लायक हैं। नंबर 3, हैव एक्सरसाइज। अगर आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं है तो आज ही आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड द टॉपिक वाज हेल्थी एक्टिविटीज़ इन विच वी डिस्कस्ड एक्सरसाइज ग्रेट इन डिटेल। अर्ली टू बेड, हैव एक्सरसाइज, लेट अस सी द वर्ल्ड इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह देखिए कि कितना खूबसूरत दिन होता है, हर चीज़ खूबसूरत नज़र आ रही होती है, ओस पड़ी होती है, हवा ताज़ा होती है, बंदे भी ताज़ा होते हैं, और वो हवा जब आपके फेफड़ों में जाएगी तो आपके फेफड़ों का ओवरऑल होगा, इसकी ट्यूनिंग होगी। नंबर 4, एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज सर, हाथ हिलाइए। टीवी पहले नहीं था इस्लाम में, जैसे उन्होंने बोला था कि टीवी हराम है, तो आपने बोला था उस वक्त नहीं था टीवी। टीवी इस्लाम का हिस्सा नहीं है। कहना ये चाह रहा हूँ, इस्लाम के दौर में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में टीवी ईजाद नहीं हुआ था, या इसलिए हराम नहीं करा दिया गया। इसलिए हराम नहीं करार दिया गया। नहीं, मैंने ये नहीं कहा है, वो था ही नहीं तो उसकी बात क्या करनी। तो सर उस कुरान मजीद में खुद ये बात है कि एक दिन जहाज समुंदर पे चलेंगे, उस पर जहाज भी नहीं थे, तो आज चल रहे हैं बहरी जहाज। नहीं समझ आ रही। उस कुरान मजीद में ये भी है कि जहाज एक दिन पानी पे चलेंगे, उस वक्त जहाज भी नहीं थे। नहीं, तो कश्तियाँ थी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो, एक्सक्यूज मी सर, बड़े बड़े जहाज कुरान पाक में प्रोफेसीज हैं। प्रोफेसीज क्या होती हैं? पेशन गोइयाँ हुई हैं जो उस वक्त नहीं चीज़ थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में है कि एक वक्त ऐसा आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये प्रोफेसीज हैं। हमारा दीन कामिल दीन है। दुनिया में आखिरी दिन तक जो जो कुछ होना है कुरान और हदीस में बता दिया गया है। We need to be punctual in our daily prayers. अगर हम नहीं हैं तो आज से हम इरादा करेंगे कि हम अपनी नमाजें जल्दी जल्दी उनके मुकर्ररा वक्त में अदा किया करेंगे, अव्वल वक्त में अदा किया करेंगे। Number 5, and we should recite the Holy Quran at least one ruku with translation. कुरान पाक हमने तो पढ़ लिया हुआ है, किसी ज़माने में पूरा कर लिया हुआ था। उसके बाद सर क्वेश्चन आंसर सेशन अब रखते हैं इंशाल्लाह बात, ठीक है? आप लिख लीजिए, थोड़ी सी स्लाइड रह गई, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, शेयर कर लेने दीजिए। देन वी शैल हैव क्वेश्चन आंसर सेशन। वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह completed our Quran Pak, but we seldom read it. We read especially in the month of Ramadan. But make it your habit that you will read Quran at least one ruku daily with translation. You will read Quran Pak at least one ruku daily with translation. Getting me or not? With translation and explanation. Along with it, you are supposed to read one hadith daily with translation and with explanation. Listen to me now. If you read one hadith daily, after 1 year, you will have learned at least 365 ahadith.
Imagine for a while, this is your investment. ये हम इन्वेस्ट कर रहे हैं. सबसे पहले हम सुबह सुबह उठ रहे हैं, दिस इज इन्वेस्टमेंट. हम नींद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं क्योंकि हम एक जगह इन्वेस्टमेंट हमने शुरू किए. हम जल्दी उठेंगे तो उससे हमें फ़ायदा मिलेगा. हम बेड पर रहेंगे, इन्वेस्टमेंट अगर हम नहीं करेंगे, सोए रहेंगे, तो हम क्या पाएंगे? थोड़ी सी तसल्ली, ओ यार आज को नींद ठीक रही है. Wasted 2 or 3 hours in the morning, precious hours of your life. आराम करने की ज़िंदगी है. जब आप रिटायर्ड हो जाएंगे तब आपको आराम करने का मौका मिलेगा, लेकिन अपनी मंजिल पे तो पहुंच जाओ. मंजिल पे पहुंचने से पहले हमने इन्वेस्ट करना है. वी आर इन्वेस्टिंग टाइम, वी आर इन्वेस्टिंग एक्सरसाइज, वी आर पुटिंग आवर बॉडी इन अ फिक्स. हम अपनी बॉडी को मुश्किल में डाल रहे हैं. औरतों को भी चाहिए कि सुबह उठ के वो भी एक्सरसाइज किया करें. दिस इज आवर इन्वेस्टमेंट एंड वी शैल रीप इट वन डे आफ्टर 10 years, 15 years और 20 years. डेली प्रेयर्स, हम इसमें भी इन्वेस्ट कर रहे हैं. हम नमाजें पढ़ के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हम नमाजें पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है और हमें इसके बदले जन्नत मिलेगी. और देखिए, एक्सरसाइज करने में तो शायद आपको डिलाइट ना मिले, सुबह उठ के सैर करने में तो शायद आपको डिलाइट ना मिले, लेकिन नमाज पढ़ने में आपको डिलाइट लाजमी मिलेगी. जब आप अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो आपको डिलाइट मिलेगी कि अल्लाह आपको देख रहा है. रुकू करने में डिलाइट मिलेगी, सजदा करने में डिलाइट मिलेगी, और नमाज के अंदर कुरान पाक पढ़ने से आपको डिलाइट मिलेगी. फिर जब हम कुरान पढ़ेंगे तो हमें डिलाइट मिलेगी, हमारे दिल को तस्कीन पहुंचेगी, हमारे कानों को अच्छा लगेगा. जैसे हम गाना गुनगुनाते हैं, इसी तरह जब आप कुरान पाक की आदत आप डाल लेंगे तो आपको कोई भी गाना अच्छा नहीं लगेगा. ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो जो हमारी पहले हैबिट्स थी, वो छैया सुनने की, हमने उसको डिलीट किया क्योंकि वो भी एक आदत, एक कशिश सिकल की वजह से हमारे कानों तक पहुंची. हम अपना बच्चा जैसे मौलवी साहब के पास ले जाते हैं कि मौलवी साहब ज़रा दम कराइयो अनु, ऐसे हमने नहीं किया. हमारा बच्चा हमारे हाथों में ही था, हमने टीवी और मौलवी की आवाज़ ऊंची की कि गानों की आवाज़ हमारे बच्चे को कानों में पड़े, तो फिर उसने झूमना शुरू कर दिया क्योंकि वो कुदरती है. जब यहाँ पे एंटीवायरस लगा, जब इसको ब्लॉक किया गया, तो फिर कोई भी आवाज़ कानों तक नहीं गई, लेकिन एक ही आवाज़, रेसिटेशन ऑफ द होली कुरान. व्हेन यू लिसन टू इट, इट ट्रांसफॉर्म्स योर बॉडी. इससे क्या होता है? आपकी पूरी बॉडी की तश्कील होती है, आपके जहन की तश्कील होती है. एंड व्हेन यू रिसाइट द होली कुरान, जब आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो फरिश्ते भी उसको सुनते हैं अगर आप अच्छी तिलावत कर रहे हैं. एक हदीस मतलब 3 या 350 हदीस एक साल में आपके पास होंगी आपकी ये इन्वेस्टमेंट में. अभी मैं आपसे पूछूं कि आपने 14-15 साल जो इन्वेस्टमेंट की है, टाइम की, एनर्जी की, माइंड की, अभी आपके पास क्या है? व्हाट डू यू हैव एट द मोमेंट? नथिंग बट एम्बैरेसमेंट. बी पंक्चुअल टू स्कूल और कॉलेज. स्कूल जाइए, रेगुलर जाइए, टाइम पर जाइए. कॉलेज रेगुलर जाइए, टाइम पर जाइए. टीचर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, नो प्रॉब्लम. रेगुलर जाने से कौन सी चीज़ डेवलप हो रही है? पंक्चुअलिटी. आई हैव नेवर बीन एब्सेंट. अब ये कहेंगे मैं कभी भी कॉलेज एब्सेंट नहीं रहा. इसमें पंक्चुअलिटी. कभी देखा है कि आज चांद नहीं चढ़ा? यार आज सूरज ही नहीं निकला, आज 2 दिन हो गए सूरज नहीं निकला, लगता है पेके के आधा. ऐसा सुना है कभी? कोई ऐसी चीज़ लगातार अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई हुई हैं उसमें कोई एब्सेंस नहीं है. सूरज ने चमकना ही चमकना है, इसने रोशनी देनी ही देनी है. वो नहीं कहता कि यार आज दी दिहाड़ी जरा ठहर लोड शेडिंग हो लेने दीजिए. इससे आपको पंक्चुअलिटी आएगी. नंबर 8, ड्रेस डिसेंटली. आपने अपने कपड़े पहनने हैं तो बड़ा डिसेंट आपको लगना चाहिए. ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है. ये आपकी अपीयरेंस है तो सब कुछ है. आपके कपड़े बड़े नफासत वाले होने चाहिए और आपके कपड़े बिल्कुल भी इस तरह के नहीं होने चाहिए कि वो दूसरों को अपनी तरफ खींचें. हम भी ड्रेसिंग करते हैं कि हम दूसरे सेक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, तो ये चीज़ हराम है. नफासत वाला बनने के लिए हमने कपड़े पहनने हैं. लोगों को बताएं कि हमारा दीन मज़हब इस्लाम है, इसमें नफासत है, इसमें सादगी है, इसमें पाकीज़गी है. इससे हमने अपना सतर ढांकना है, ठीक है. और हर मौके के लिहाज से कपड़े होते हैं. हमने सीखना है उनकी सिलेक्शन करना और अपनी ज़िंदगी से कॉपी का वर्ड निकाल फेंकिए. औरतें कॉपी करती हैं ड्रामा एक्टर्स को, आप लोग कॉपी करते हैं. क्या आपकी अपनी कोई सोच नहीं? डोंट यू हैव योर ओन थिंकिंग, योर ओन लाइक्स और डिसलाइक्स?
Are you a follower and follower for whole life? सारी जिंदगी लोगों को कॉपी कर करके आपका कुछ भी नहीं रहा है. What is your own identity, by the way? He is a man, he has his own identity. He is a man, he has his own identity. Copy is not haram. But we need to copy the things which are not actually copied by anybody else. We are not actually makers. We have got to be good selectors. एक अच्छी चीज़ अपने आप में शामिल कीजिए, वो है selection. Your selection should be accurate. And if your selection is good, your life is good, your appearance is good. But if you're copying anybody else and you're looking alike, अब एक जैसे लग रहे हैं, then it is not impressive. You should look impressive, and it's only because of your good selection. Dress decently. Discover yourself. The most important thing. घर जाइए, देखिए, जैसे आप चोरी करके एक बैग लेके आते हैं ना, मुझे ये बताएं कि जब आप तो नहीं, चोर हजरात मुतवज्जो ना हो, बल्कि वो बताएं कि जब हम चोरी करके किसी घर से या किसी बैंक से वो सारी चीज़ें बैग में डाल के घर लेके जाते हैं, उछलते कर लो घर लेके जाते हैं, तो घर जाके चेक नहीं करते कि उस चोरी ने क्या क्या चोरी करके आए हैं, क्या रख देते हैं. आपको आपका जिस्म मिला है आज गुमशुदा, अपने आप को डिस्कवर कीजिए. पहले देखिए कि आपके 2 हाथ हैं, 2 हाथ हैं. जानिए अल्लाह ताला ने ये क्यों दिए. आपके हाथ तो होंगे, लेकिन ये जगह जो है वो दुख रही होंगी. हाय हाय, क्यों दुख रही होंगी? मैसेज कर करके दुख रही होंगी, मैसेज कर करके, बैटरी चेंज कर करके दुख रही होगी, सिम चेंज कर करके दुख रही होगी, मोबाइल फोन के कार्ड लोड कर करके दुख रही. हाय अम्मी जी, देखिए इन्ना तो तुम पता है क्यों दुख रही है, बाकी चीज़ा ने तुम मैंने दस. अल्लाह ने आपको ये हाथ दिए, द मोस्ट पावरफुल थिंग. जानिए, डिस्कवर कीजिए कि इनके इस्तेमाल क्या है. मैंने अगर खाना खाना है तो मैं कोहनियों से तो नहीं खाऊंगा. मुझे जानना चाहिए कि ये मैंने कोहनी अल्लाह ताला ने मुझे क्यों दी हैं. कभी इस्तेमाल किया इनका, कभी अपने घुटने और टहनों का इस्तेमाल किया, कभी अपनी हिप का इस्तेमाल किया, अपने सर का इस्तेमाल किया, कानों का, आँखों का, ज़ुबान का, नाक का कभी इस्तेमाल किया, पेट का कभी इस्तेमाल किया. आप बच्चे को एक पूरे थैले में खिलौने ला के देते हैं, बच्चा एक एक खिलौने को खेलता है, और आप ये देखिए कि उस खिलौने को जब तक तोड़ फोड़ ना ले वो सोता नहीं है. उसकी मशीनरी पूरी बाहर निकाल देता है, फिर उसको जोड़ने की कोशिश करता है. तो आइए घर चलें. आज हमारी टास्क क्या है? तरावी के बाद अपने आप को जांचना है कि अल्लाह ताला ने मुझे कौन कौन सी सलाहियतें दी हुई. Get interested in studies, for God's sake. अल्लाह के लिए स्टडीज़ में अपना दिल लगाइए. जैसे अपने आप को डिस्कवर करना है, अपनी किताबों को डिस्कवर कीजिए कि आपको किताबें क्यों दी गई हैं, आपको पढ़ने के लिए क्यों कहा गया है, डिस्कवर कीजिए. गेट स्टडी फॉर नॉलेज, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट. नई हैबिट आपने क्या डालनी है कि हमने स्टडी करनी है इसमें से नॉलेज लेने के लिए. कभी मैंगो खाया? मैंगो है जी, खाए. अब आजकल का तरीका डिस्को आ गया हुआ ना, उसके कपड़े पहले उतारे, फिर उसको काटा, टोटे किए उसके, फिर उसको जिसको पंजाबी में कहते हैं कोली में डाल के आपको दिया, लो पाए. लेकिन किताबों को खंगालने का लफ्ज़ आपने सुना हो कभी? मैं किताबें पढ़ता नहीं, मैं किताबों को खंगालता हूँ, इस तरह से उसको जोड़ देता हूँ. किताबों को खंगालना है, जैसे आम खाने का देसी तरीका है, उसको नरम करना है और उसमें से गूदा निकालना है, उसकी गुठली को भी नहीं छोड़ना है और उसके छिलके को भी नहीं छोड़ना है. और जो आम जब अंदर जाएगा फिर आपको बताएगा कि वाकई आम खाता है. तो एक एक टुकड़ी करके हैं. वेरी गुड है, बड़ा वेरी गुड. किताबों को खंगालना है. जानिए घर जाके कि किताबें क्यों दी गई हैं. किताबों के अंदर से जूस और उसका मगज़ निकालना, मगज़ निकाल के किताब को वो वहाँ पे रखा. किताब के अंदर जितनी भी चीज़ें थीं वो आपके जिस्म के अंदर चली गईं. जैसे मैंने आपको आम की मिसाल दी है कि आम में से सारी चीज़ें निकाल के अपने अंदर वो रखा, छिलका पड़ा हुआ. किताबों को छिलका बनाइए, उसके अंदर जितनी चीज़ें हैं निकाल लीजिए और उसको अपने जिस्म का हिस्सा बनाइए, खून का हिस्सा बनाइए. लेकिन देखिए हम किताबें क्यों पढ़ते हैं? वी स्टडी फॉर ग्रेड्स.
किताब वो, here I am, ये मैं हूँ, मैंने FA में इतने नंबर लिए, मैंने BA में इतने नंबर लिए, मैंने मैट्रिक में टॉप किया, मैंने गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ये देखें गोल्ड मेडल। वो जो किताब आपने पढ़ी थी आपको आती है उसमें से कुछ नहीं, लेकिन मैंने नंबर बड़े अच्छे लिए। हमारा फोकस ही ग्रेड्स की तरफ होता है। हमने ग्रेड्स को क्या करना है? कुरान पाक पढ़ के कोई ग्रेड्स मिलने हैं ABC? हमें तो पता होना चाहिए कुरान में क्या है, हदीस कहना क्या चाहती हैं, नॉलेज। मुझे 6 सूरतें आती हैं, 10 सूरतें आती हैं, 15 सूरतें आती हैं, इससे लेना देना क्या? वो सूरतें कहती क्या हैं, हमें उससे लेना देना होना चाहिए। हैव गुड फ्रेंड्स, आज से ही अपने दोस्तों को भी चेक कीजिए कि ये दोस्त जो मेरे हैं वो मेरे लिए फ़ायदा मंद हैं या नहीं। अगर हैं तो जी आया नू, अगर नहीं है तो उनको दरवाज़े का रास्ता दिखाइए। एक चीज़ ये, नहीं तो उनको भी ठीक करने की कोशिश कीजिए। अगर वो अच्छे दोस्त नहीं हैं तो आप अच्छा दोस्त बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको दुनिया में कोई अच्छा दोस्त ना ही मिले तो कल्ले ही टुरदा जाएगा मुंडा। हमने दोस्त बनाना है और टेक्निक्स के साथ, लेकिन पहले वो सलाहियतें अपने अंदर पैदा करनी। अच्छा दोस्त वो है जो मुसीबत के वक्त नहीं, हर वक्त ही उसके काम आए। मैं वो दोस्त नहीं समझता जो सिर्फ मुसीबत में काम आए, आपके अच्छे वक्त में भी आपके काम आए, आपके बुरे वक्त में भी आपके काम आए। इसलिए हमने दोस्त की तलाश करनी है। यहाँ पे भी आपको कौन सी स्किल हेल्प करेगी? सिलेक्शन वाली। डिस्कस फ्रूटफुल टॉपिक्स। जब आप इकट्ठे बैठे होते हैं तो जो टॉपिक्स आपके होने चाहिए वो फ्रूटफुल होने चाहिए। और वो टॉपिक्स कैसे होने चाहिए? आगे कैसे बढ़ना है, आगे कैसे बढ़ना है, तरक्की कैसे करनी है, मुश्किलात का खात्मा कैसे करना है। तुम मुझे कोई गुर सिखाओ, मैं तुम्हें कुछ गुर सिखाता हूँ। पाकिस्तान को आगे कैसे लेके चलना है, अपनी मादरी ज़ुबान को आगे कैसे लेके चलना है, पाकिस्तान की प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाना है, पाकिस्तान की यूथ को कैसे ताकत देनी है, अपनी सिस्टर्स की हिफाजत कैसे करनी है, अपने वालिदैन का नाम कैसे बढ़ाना है, अपने दादाओं का नाम कैसे बढ़ाना है, अपनी दादियों की इज़्ज़त कैसे करनी है, फैमिली में मुकाम कैसे हासिल करना है, सोसाइटी को मुस्बत सोसाइटी की तरफ कैसे लेके चलना है। ये टॉपिक्स आपके साथ होने चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो चीज़ हमें विरासत में मिली है दीन इस्लाम, उसकी रक्षा कैसे करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होनी चाहिए। दावत व तबलीग वाले टॉपिक्स होने चाहिए। मुसलमानों की तादाद में इजाफा करने की सोच होनी चाहिए। ये वाले टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। लेकिन ये टॉपिक्स तब ही डिस्कस करेंगे जब आपको जिसकी तलाश है उन ब्याह के घर लेके आओगे। गेट अलॉन्ग विद पेरेंट्स। अपने वालिदैन के साथ अच्छे ताल्लुकात रखिए। हम अपने वालिदैन को ईद के ईद मिलते हैं। कुरान पाक में वालिदैन का एहतराम, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना 5 दफ़ा कहा गया है। लेकिन कहीं पे भी कुरान पाक में ये जिक्र नहीं है कि अपने बच्चों का भी ख्याल करो, उनसे मोहब्बत करो। इज्जत करने के लिए वालिदैन का कहा गया है। और हम औलाद की तरफ हैं, इसीलिए तो औलाद बाद में हमारी लुक आफ्टर नहीं करती है कि हमें जिस चीज़ पर स्ट्रेस देना चाहिए कि वालिदैन की इज़्ज़त करो, वालिदैन की इज़्ज़त करो, वालिदैन की इज़्ज़त करो। और जब वो बुढ़ापे में पहुंच जाए तो उनको उफ तक भी ना कहो। इस चीज़ की प्रीचिंग नहीं है। अपने वालिदैन के साथ ताल्लुकात बड़े डाढ़े बनाइए और हेल्थी फूड खाइए। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा। अक्लमंद के लिए डंडा ही काफ़ी है, इसलिए मैं जल्दी चलता चलाऊंगा। छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए। रात को सोने से पहले कल का दिन कैसे गुजारना है वो लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप सुबह उठ के लिखना शुरू करेंगे तो देर हो चुकेगी। सोने से पहले जो कल सारा दिन करना है छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, फिर उनको डिवाइड कर लीजिए, प्रायोरिटाइज कीजिए उनको। रीड अबाउट योर दीन। अपने दीन के बारे में पढ़िए। इसके लिए मैंने आपको मशवरा दिया है कि कुरान पाक का 1 रुकू ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन के साथ और 1 हदीस अभी छोटी उम्र में काफ़ी। रीड अबाउट इस्लामिक हीरोज़। टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। ये आपके फरागत की चीज़ें हैं। नई चीज़ें डेवलप करनी है आपने, नई हैबिट्स डेवलप करनी है। आपसे मैंने शुरू में प्रॉमिस लिया था कि आप प्रॉमिस करें अपने आप से कि आप अपने दीन के बारे में सीखेंगे। आप प्रॉमिस करें कि इस्लामिक हीरोज़ के बारे में आप पढ़ेंगे। आपका टॉपिक था ना सक्सेस कैसे लेनी है, तो सक्सेस ऐसे 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 करके नहीं लेनी है।
हमने उनकी ज़िंदगियों को स्टडी करके सक्सेस हासिल करनी है। इस्लामिक हीरोज़ दुनिया के ताकतवर हीरोज़ हैं, हरकुलिस को मारने वाले हैं, उनके बारे में पढ़िए। दुनिया सर करने वाले हैं, दुनिया में इस्लाम को राज करने वाले हैं, कायम करने वाले हैं, उनकी ज़िंदगियों को पढ़िए। ये हैरी पॉटर वगैरह ना पढ़िए, इसमें कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। ये अलिफ लाला की कहानियाँ ना पढ़ें, या आप बाजियो 3 औरतें 3 कहानियाँ ना पढ़ो। इस तरफ आइए, उम्महातुल मोमिनीन की ज़िंदगियों को पढ़िए, क्योंकि आगे आगे जाके आपने अपने मियाँ को सर्व करना है। और जब मियाँ को रोटी सही तरह नहीं ना बनानी आएगी, वह बाहरों ही खा के आएगा। सही क्या है? रीड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। हर बंदा, टीनेजर, आपका मामूल होना चाहिए कि आज से आप, मैं डेली नहीं कहता, वीकली न्यूज़पेपर लगवाइए। महीने का एक मैगज़ीन खरीदिए, वो वाला मैगज़ीन जिसमें से आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी है। गेटिंग और नॉट, न्यूज़पेपर नॉट डेली बट वीकली, मैगज़ीन मंथली। नंबर 20, रीड उर्दू एंड इंग्लिश लिटरेचर। और क्या करना है आपने? उर्दू और इंग्लिश का लिटरेचर पढ़ना है आपने, तशरीह के साथ। गालिब को पढ़िए, हाली को पढ़िए, इकबाल को पढ़िए, सबसे लाजमी तशरीह के साथ पढ़िए। अहमद नदीम कासमी को पढ़िए, इंग्लिश लिटरेचर पढ़िए, उसमें ड्रामा पढ़िए एक्सप्लेनेशन के साथ। ड्रामा की तरफ मैं नहीं आऊँगा, मैं आपको फिक्शन की तरफ भी नहीं आऊँगा। जो लिटरेचर खालिस है, जिसमें डिस्कशंस हैं, पैराग्राफ्स हैं, जिसमें एसेज हैं, उनको पढ़िए। पोइट्री को पढ़िए, क्योंकि जब आप पोइट्री का टेस्ट जब आपको मिल गया, फिर आप झूम झूम जाएंगे। फ्रांसिस बेकन को पढ़िए, हैमलेट को पढ़िए, अल्फ्रेड को पढ़िए, स्टीवन कॉवी को पढ़िए। आप आए तो सही इस तरफ, फिर आप ये देखिए कि आपके लिए नई दुनिया के दरवाजे खुलते हैं कि नहीं खुलते हैं। जैसे बच्चा वीडियो गेम में एक नई दुनिया में होता है ना, आपने किताब पकड़ी, पता नहीं कितनी हाइट पे आपने सफ़र करना शुरू कर दे, क्योंकि आपको उस किताब पढ़ने से डिलाइट मिल रहा है, और वो डिलाइट आपके दिमाग की फॉर्मेशन कर रही। जैसे आप इकबाल का शेर पढ़ते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। मुझे डिलाइट भी मिला, मैं इस चीज़ से मैंने अग्री भी किया, और मैंने सीखा कि मेरे अंदर जो छुपी हुई खुदी है उसको आज जगाऊंगा, डंडे मारूंगा उसको, मैं बात से पकड़ के उसको उठाऊंगा। ये शेर से मैंने सीखा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, सारी उम्र पढ़ते आए हैं। इसका मतलब क्या है कि मोहम्मद से वफा करोगे तो सफलता मिलेगी, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कहा है ये है वफा करना। सारी रात 2-3 दिन बल्कीस रोंदी रही, क्या शेर है? बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, 1000 साल में 2-2.5 दिन ही रोंदी रही बेचारी। सारी उम्र पढ़ते रहे, सीखा क्या? कुछ भी नहीं। ना हमारी माओ ने सीखा, ना हमारी बहनों ने कुछ सीखा। शेर पढ़ा, सुनाया, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। उर्दू एंड इंग्लिश लिटरेचर। नंबर 21, रीड अबाउट योर एंसेस्टर्स। अपने एंसेस्टर्स के बारे में पढ़िए, हरीफों के बारे में, पुराने जो आपके हरीफ थे उनके बारे में पढ़िए। रीड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ग्रेट नेशंस। अजीम अक़वाम के बारे में पढ़िए कि उन्होंने सक्सेस कैसे हासिल की। अमेरिका की सक्सेस कैसे हुई, साउथ अफ्रीका की कैसे हुई, चाइना आजकल डेवलपमेंट में बहुत आगे है, उसका राज क्या है? कौन सी छुरी है उसके पास जो काटता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है? यहाँ से सक्सेस हमने लेनी है। सक्सेस रेडीमेड प्लेट में नहीं मिलेगी। नंबर 23, रीड अबाउट सक्सेसफुल पीपल। कामयाब जो लोग हैं उनके बारे में पढ़िए कि उन्होंने कामयाबी कैसे हासिल की। 24, लर्न न्यू स्किल्स। ज़्यादा से ज़्यादा नई स्किल सीखिए। हमें तो गाड़ी पंक्चर हो जाए तो टायर चेंज करना नहीं आता है, हमारे पास कोई स्किल्स नहीं है। शलवार में नाला भी डालना हो तो अम्मा आजमान है, मजी नाला पे आता है। शूज़ हम साफ़ नहीं कर सकते हैं, कपड़े हम इस्त्री नहीं कर सकते हैं, हम चाय बीबियाँ नहीं बना सकती हैं, चिट्टे चौल नहीं बीबियाँ बना सकती। तो स्किल्स हमारे पास क्या है? रेडीमेड लाइफ, रेडीमेड। वॉच फ्रूटफुल टेलीविजन प्रोग्राम। सर मैं टेलीविज़न के खिलाफ नहीं हूँ, बाजी सरैया टीवी के खिलाफ में नहीं हूँ। फ्रूटफुल टेलीविजन प्रोग्राम्स। रेसलिंग की मिसाल मैं ये देता हूँ। रेसलिंग देखते हुए आपको क्या डिलाइट मिल रही है?
रेसलिंग देखते हुए हमने ये सीखना है कि ये जो रेसलर है अपने जिस्म का कौन सा ताकतवर हिस्सा इस्तेमाल कर रहा है उसको पिछाड़ने के लिए, इसलिए हमें रेसलिंग देखनी चाहिए। हम रेसलिंग देखने ऐ जीते ऐसे भी कर रहे थे एनू पैड़ियाँ चाहिए। अक्लमंद इंसान तो एक तिनके से भी सीखता है, जिस्म का कौन सा ताकतवर हिस्सा है। जब हम पहाड़ी पे चढ़ रहे होते हैं तो हमें डिलाइट मिलता है, हम ये चेक करें कि वो कौन सा ऐसा हाथ वहाँ पे रखता है जिससे वो पहाड़ी को सर करता है। स्पोर्ट्स आप देखते हैं, सर्फिंग कर रहा है अगर वो समंदर के ऊपर तो कौन सा ऐसा वो ट्रिक इस्तेमाल कर रहा है कि वो समंदर की लहरों के साथ खेल रहा है, उनको काट रहा है। वहाँ से इंस्पिरेशन लीजिए। हम कहते हैं वाह 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 वाह। कोई स्पोर्ट्स क्रिकेट फुटबॉल देख रहे हैं तो वो ये देखें कि कौन सी टेक्निक यूज़ करके उसने गोल किया है। तो ज़िंदगी में भी ये गोल करना है हमने। आज मैंने गोल कर दिया, मैं 4 गोल करके घर आया हूँ। तो ज़िंदगी भी एक खेल है, हमने इसमें ट्रिक्स सीखने हैं। फ्रूटफुल टेलीविज़न प्रोग्राम्स कौन से हैं जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। इन्फॉर्मेशन तो आप किताब से भी ले सकते हैं, लेकिन अपना वक्त ज़ाया ना कीजिए। कोई ड्रामा आपको कुछ भी नहीं सिखाता है, कोई मूवी भी आपको कुछ नहीं सिखाती है, कोई सॉन्ग भी आपको कुछ भी नहीं सिखाता है। फ्रूटफुल चीज़ें इस्लामिक चैनल्स ही हैं। कौन से चैनल्स, आगे जाके देखते हैं कि हमने अपने दिमाग को कैसे तेज़ करना है। अवॉइड एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। हमें थोड़ा तेज़ चलूँगा, सिर्फ 10 मिनट्स आए, तैयारी कीजिए। इम्प्रूव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए। बी ट्रूथफुल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सच बोलना सीखिए। ये हैबिट अपने आप में डेवलप कीजिए कि हम हमेशा सच बोलेंगे। 29 फाइंड बैलेंस बिटवीन योर टास्क, अपने टास्क में बैलेंस रखिए। डू स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, इस पे बहुत लंबी चौड़ी बहस हो सकती थी। छोटे छोटे काम कीजिए नेकियों के। कौन से काम? वो बंदा जो आपके घर में आप मांगने के लिए आ रहा है, सिर्फ उसकी मदद ना कीजिए। हॉस्पिटल्स में जाइए, जो सिक हैं उनकी तीमारदारी कीजिए। उनको अगर ब्लड डोनेट करने की बारी आती है तो वो कीजिए। फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटल्स विजिट कीजिए। छोटे छोटे नेकी के काम कीजिए, इसमें से आपको डिलाइट मिलेगा और जज्बा मिलेगा आपको नेकी करने का। छोटे छोटे काम, किसी की मदद कर दीजिए, किसी को सड़क पार करवा दी, रास्ता साफ कर दिया, किसी की हेल्प कर दी, किसी के लिए सौदा सलफ लेकर आ गए। ये छोटे छोटे काम हैं, इससे आपको डिलाइट मिलेगी। नंबर 31 टैप इनटू योर टैलेंट्स, और अपनी सलाहियतों को थपकी दीजिए। शाबाश शाबाश काशिफ, वेल डन। बहुत से लोग अपने आप को थपकी नहीं देते हैं, इसका मतलब है अपने आप को थपकी दीजिए, अपने अंदर से उसको उठाइए। काशिफ कम ऑन गेट अप, वेल डन काशिफ, कम ऑन गेट अप। तो आप ही हैं अपने आप को हौसला देने वाले। 32 रिन्यू योरसेल्फ, ये लास्ट हैबिट है जो आपने सीखनी है। आपने अपने आप को रिन्यू भी करना है। पता है सारा दिन गाड़ी चल चल के गंदी हो जाती है, 2 दिन चल के गंदी हो जाती है, 3 दिन चल के गंदी हो जाती है। उसको साफ भी करना है, उसका ऑयल चेंज भी करना है, उसका फिल्टर भी साफ़ करना है, उसके अंदर सीटें भी साफ़ करनी है। तो अपने जिस्म को भी साफ़ करना है, अपने जिस्म को भी रिन्यू करना है। जब आपको कोई फ्रस्ट्रेशन हुई तो सोचिए उस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने का तरीका क्या है। मस्जिद में चले गए, 5-10 मिनट कैलूला कर लिया, नीचे बेसमेंट में चले गए, वहाँ पे ऊंची ऊंची आवाज़ में चीखें मारी, वो आपके अंदर वाली फ्रस्ट्रेशन ख़त्म होगी। इसको कहते हैं रिन्यू करना। किसी अलहदा आइसोलेटेड रूम में चले गए, सैर करने के लिए चले गए, साइट सीइंग के लिए चले गए, तो ये अपने आप को रिन्यू करने के लिए एक्सरसाइजेज हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो दुनिया में आपके दिन तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा हो, लेकिन आप टुर फिर नहीं सकेंगे, क्योंकि हर वक्त बोझ काम का, हर वक्त बोझ काम का। रिन्यूअल का टाइम रखिए। ओनली 5 मिनट्स। अपने दिमाग को आपने अब तेज़ कैसे करना है, वो आदत जो आपने सीखनी है। अपने दिमाग को इंटेलिजेंट होने के लिए कौन कौन सी स्किल्स आपको चाहिए? ट्रैवल, इफ़ यू गेट टाइम ट्रैवल। प्लांट अ गार्डन, प्लांटिंग कीजिए। टू शार्पन योर माइंड, अपने जहन को तेज़ करने के लिए ये चीज़ें लिखने के लिए। ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को ऑब्जर्व कीजिए कि ये जानवरों की, हशरात की ज़िंदगी कैसे होती है, उनको ऑब्जर्व कीजिए। अटेंड इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स, जहाँ पे भी इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स हो रहे हों उसको अटेंड कीजिए जाके, जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिले। इन्वेस्टमेंट कीजिए अपने टाइम की, मनी की नहीं, टाइम की, एनर्जी की। ये प्रोग्राम टेलीविज़न के भी हो सकते हैं। वॉच डिस्कवरी चैनल और नेशनल जियोग्राफिक चैनल टू शार्पन योर माइंड, इसको ट्राई कीजिए। विजिट अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को विजिट कीजिए। सियालकोट में एक लाइब्रेरी है, हम उसके पास से गुजरते हैं,
अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी, अंदर जाने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। विजिट अ म्यूज़ियम, म्यूज़ियम विजिट कीजिए, पुराने ज़माने में आप चले जाएंगे, दिमाग आपका ताज़ा होगा, सोचने की कोशिश करेंगे, उन चीज़ों को अपनाने की कोशिश करेंगे। राइट समथिंग, कुछ लिखने की आदत डालिए, वो स्टोरी भी हो सकती है, वो एक मैसेज भी हो सकता है, वो एक पोएम भी हो सकती है, इससे आपकी मेंटल फैकल्टीज़ में इजाफा होगा। प्ले चैलेंजिंग गेम्स, ऐसी गेम्स खेलें जिसमें चैलेंज हो, सिर्फ डिलाइट ना मिले, चैलेंजिंग गेम्स जिसमें जीतना है, जीतने की शक्ति लेकर आइए। डिबेट कीजिए, क्लासरूम में डिबेट कीजिए, जहाँ भी मिल बैठते हैं वहाँ पे डिबेट कीजिए, डिबेट से आदमी की जहानत में इजाफा होता है। कमेंट इन क्लास, क्लास में कमेंट कीजिए, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। हैव स्टिमुलेटिंग कॉन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ उभरने वाली डिस्कशंस कीजिए ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले। सॉल्व क्रॉसवर्ड्स, क्रॉसवर्ड्स को सॉल्व कीजिए, ये आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा क्योंकि आपको वहाँ पे अपने दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमने अपने दिमाग को कभी तेज़ किया ही नहीं है, क्या किया है? Have you ever sharpened your mind? No, never. The most important thing, आज हम नया अहद करने लगे हैं अपने आप से। Listen to your language, आपकी लैंग्वेज क्या होती है? जैसे आपकी अम्मी कहती है जाओ मुझे दूध ला दो, आपको जवाब मिलता है अम्मा को अम्मी ठहर के जाता हूँ। ये आपके अंदर से आपको जवाब मिल रहा है, आपके अंदर से जो आपको जवाब मिल रहा है उसको सुनिए। लेफ्ट साइड पे जो जवाब दिए हुए हैं आपने इनको ख़त्म करके ये राइट साइड वाले जवाब लेने हैं। फॉर एग्जांपल आपने अक्सर सुना होगा लोगों को कहते हैं कि यार ये काम करो, तो जवाब मिलता है ओके सर आई विल ट्राई। इसको रब कीजिए, इसकी जगह क्या कहेंगे? आई विल डू इट। फिर कहते हैं दैट इज जस्ट द वे आई कैन डू इट, हाँ यही तरीका है जिससे मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। नहीं, आई कैन डू बेटर देन दैट, मैं इससे भी बेहतर कर सकता हूँ। यार तुम ये वाला तरीका करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। नहीं सर, मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। ये आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। देयर इज नथिंग आई कैन डू, सर कुछ भी नहीं है करने के लिए। ये आपकी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लेट अस लुक एट ऑल आवर ऑप्शंस, हम सारे के सारे ऑप्शन यूज़ करते हैं। जैसे मैं ये कहता हूँ कि सियालकोट को दुनिया का सबसे अमीर तरीन शहर होना चाहिए, आपका जवाब यस नहीं। इज इट पॉसिबल और नॉट? 100% पॉसिबल, लेकिन इसके लिए देर लगेगी। वो सकेंगे सड्डो सर की अड्डा ये तो शहर है। हमने ज़राए देखने हैं, वो पॉसिबल है। जब आपने एक अज़म कर लिया है तो वो अज़म पूरा होगा। आई हैव टू, आप कहते मुझे ये करना पड़ता है, ये नहीं कहना आई चूज टू। आई कांट, मैं नहीं कर सकता। आपका जवाब देयर इज गॉट टू बी अ वे, हाँ कोई ना कोई तरीका लाजमी होगा। यू रूइन माई डे, किसी ने आपका दिन खराब कर दिया, यार तू तो सत्यानाश कर देता दिन। नहीं, वो कहता है आई एम नॉट गोइंग टू लेट योर बैड मूड रब ऑफ ऑन मी, मैं तुम्हारे बुरे मूड को अपने ऊपर चढ़ाई नहीं करने दूंगा। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। That is all from me, and now we are arranging, unless they are arranging the stuff for you. Until then we can have questions. You said that have good friends. Don't you think we should become a good friend first of all and then? देखिए ये मैंने बात कही है कि नहीं अपनी स्पीच कि सबसे पहले अगर अच्छे दोस्त नहीं बनते आपके तो आप अपने आप को अच्छा बनाइए, ये मैंने कहा है। सर आपने शुरू में कहा था लिबास के हवाले से, लड़कियों को लिबास के हवाले से, उसमें ये है कि अगर हम वो घर में चीज़ अप्लाई करते हैं तो अक्सर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है और रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है। लोग भी कहते हैं, ख़ास तौर पर रिश्ते की बारी जब आती है तो वो देखते हैं, वो कहती है ये तो लड़की तो सीधी सादी है, ये इसको तो पता ही नहीं। फैशन मैं आपको इसका एक खूबसूरत सा जवाब देता हूँ। ये तो वही बात होगी कि सर आपकी बात बिल्कुल सही, ऐसा ही करते हैं। आपका बच्चा कहता है मैंने पॉइजन खाना है, आप उसको किसी सूरत में नहीं, मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए, मिसाल एक मैंने दी है, हम उसे पॉइजन इसलिए नहीं देते कि हमें पता है कि ये उसकी इससे हलाकत हो जाएगी। हम हर तरह का जोर लगाते हैं और उसको पॉइजन नहीं देते।
इसी तरह ये जो हमारी बीबी हजरात हैं, आपकी बात सही है, हमारी बात नहीं मानती, लेकिन जब आप उनसे सख्ती करेंगे कि हमने तुम्हें पॉइजन नहीं देना, और सख्ती क्यों करनी है? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। और अगर आप चाहते हैं कि वो आग में जाएं तो फिर उनको जाने दें, अगर आप चाहते हैं कि वो आग में ना जाएं तो उन पर सख्ती करें। इसमें एक बात ये होती है कि जब सभी लोग कपड़े पहन रहे हैं तो फिर किसी को मना करें तो वो कहते वो भी तो ऐसा कर। तो बड़ी अच्छी बात आपने की है। सबसे पहले हमने अपने आप को ठीक करना है। जब हम अपने आप को ठीक करेंगे तो लोग हमारी बात सुनेंगे, नहीं तो क्रिटिसाइज करेंगे कि तुम भी ऐसे ही हो। सर आपने हमें कहा है कि फास्ट फूड खाने से और जंक फूड खाने से हम अनहेल्थी है, तो आप हमें खुद यहाँ पर लेके आए कि आए हम आपके। देखिए ये जंक फूड में आपको, आपकी बात बिल्कुल सही है। जंक फूड अगर आप सुबह भी, दोपहर भी, रात भी आप इसी पे लगे रहेंगे तो 2 दिन भी नहीं निकालेंगे। ये जंक फूड है, लेकिन ये वंस इन अ ब्लू मून कुछ नहीं कहता, महीने में एक दफ़ा आपको कुछ नहीं कहता। जैसे आप महीने में एक दफ़ा कहते हैं ना पापा आइसक्रीम खिला लाएं, आप आइसक्रीम आपकी डाइट का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन आप हफ्ते में 1 दिन खाते हैं, आप महीने में 2 दिन खाते हैं, या महीने में 1 दिन खाते हैं, तो वो आपको तंग नहीं करती। लेकिन रोज़ तो हम आपको ऐसा नहीं करते हैं ना, रोज़ का मामूल नहीं बनाना। जज़ाकल्लाह खैर, खुश रहिए, अफ्तारी कीजिए, दुआ मांगिए, अल्लाह सबको खुशियाँ दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। وانضفت حروفي في ربوع بياني، وأتى القصيد بأروع الألحان، وفي أرض خير قد بادت مسجوعة بفرح